लिक्विड रो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पर्पज से. टुडे we will discuss about liquid row model. We will see what is a liquid row model. We will learn about liquid row model and what are the merits of liquid row model and what are the demerits of this model. What are the assumptions and postulates of this model. And today we will see about semi-empirical mass formula. What is semi-empirical mass formula? What is the application of this semi-empirical mass formula? Actually, liquid row model में क्या है कि liquid row model एक great scientist नील्स बोहर उन्होंने इसको प्रपोज किया था. And in the liquid row model, the forces acting in the nucleus are assumed to be similar the molecular forces in a droplet of a liquid. लिक्विड की जो ड्रॉप में जो मोलिकुलर फोर्सेस एक्ट करते हैं उसी के सिमिलर न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं. न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगते हैं उनमें सिमिलरिटी लेते हुए नील्स बोहर ने इस मॉडल को प्रपोज किया. एंड देयर आर सर्टेन marked similarities between an atomic nucleus and a liquid row. We will discuss the similarities. What are the similarities between nucleus and a liquid row? Now let us start presentation of. Just wait for presentation. We will discuss through PPT. Now you will see that liquid row model, is it visible? This is visible here, and you will see that liquid row model was proposed by Niels Bohr and Wheeler in 1939. And in liquid row model, we are going to discuss the similarities. What are the similarities between nucleus and a liquid row? And these similarities and some assumptions we will discuss. Now discuss the similarities one by one. The nuclear forces are analogous to the surface tension of a liquid. जैसे liquid में surface tension act करता है, and due to that surface tension, liquid drop is spherical in shape. Similarly, there are nuclear forces. The nucleus is supposed to be spherical. In shape in the stable state, just as a liquid row is spherical due to the symmetrical surface tension. This is the first similarity between nucleus and a liquid row. Second is the nucleons behave in a manner similar to that of molecules in a liquid. जैसे liquid के अंदर molecules इस तरीके से behave करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं. न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बिहेवियर जस्ट लाइक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा लिक्विड के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल्स का होता है. नेक्स्ट सिमिलरिटी इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, showing resemblance to liquid row where the density of a liquid is independent of the size of the dough. As in the previous lecture, we have discussed that the nuclear density is independent of the volume or independent of the size of the nucleus. Similarly, the density of the liquid drop is independent. तो जो उसकी डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी मैटर की वो उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, इस मास नंबर ए पर डिपेंड नहीं करती है. मीनिंग ये हुआ the density of a liquid drop is independent of its volume. Similarly, the density of the nucleus is independent of its volume. और हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी थी वो बहुत हाई ऑर्डर की थी, काफी ज्यादा डेंसिटी थी. Next property or similarity between liquid drop and atomic nuclei. The disintegration of a nuclei by the emission of particles is analogous to the evaporation of molecules
from the surface of the liquid. As the temperature is given to a liquid drop, the molecules evaporate from a liquid drop on raising the temperature of the liquid due to their increased energy of thermal agitation. Similarly, when energy is given to a nucleus by bombarding it with nuclear projectiles, a compound nucleus is formed which emits nuclear radiations almost immediately. This is the one of the similarities between the nucleus and the liquid drop. The absorption of bombarding projectiles by a nucleus corresponds to the condensation of the drop. The constant binding energy per nucleon is analogous to the latent heat of evaporization. Similar, the energy of nuclei corresponds to internal thermal vibration of drop molecule. And when a small drop of liquid is allowed to inflate, it breaks up into two similar drops of almost equal size. The process of nuclear fission is similar, and the nucleus breaks up into two smaller nuclei of nearly equal size. This is the similarity between drop and the liquid drop and the nucleus. Now, one more similarity is there. The intermolecular forces in a liquid are short range forces. Short range forces means the molecule in a liquid drop interact only with their immediate neighbors. जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम जो उनके नजदीक उनके नेबरिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो दिस इज नोन एज शॉर्ट रेंज. सिमिलरली द न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज. न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, they also interact only with their immediate neighbors. This leads to the saturation in the nuclear forces and a constant binding energy per nucleon. So these were some similarities between a nucleus and a liquid drop. Now, let us discuss the assumptions of the liquid drop model. What are the assumptions given by Niels Bohr and Wheeler regarding this liquid drop model? We will discuss one by one. First assumption is the nucleus consists of incompressible matter, so that R equal to R naught A to the power 1/3, where A is the mass number of the nucleus of the, and R0 is equal to 1.3 Fermi, and we know 1 Fermi equal to 10 to the power minus 15 meter. R0 equal to 1.3 into 10 to the minus 15 meter. Nucleons consist of incompressible matter. तो उसका मैटर है वो एक स्मॉल न्यूक्लियस जो एटम है उसके अंदर एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, पोर्शन होता है, जहां पर ये न्यूक्लियस टोटल वहां पर जो मैटर है वहां पर टोटल ये कंसंट्रेट करता है, दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर एवरी न्यूक्लियन. मींस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सारा उनके बीच में जो भी आपस में न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज आइडेंटिकल. ऐसा नहीं कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स है वो अलग है, और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स अलग है, और प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स अलग है. न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर एवरी न्यूक्लियन. प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स होगा दैट विल बी सेम फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, और प्रोटॉन के बीच जो भी फोर्स होगा दैट विल बी आइडेंटिकल. द न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर ईच एंड एवरी. न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट्स, जो हमने अभी बात की थी सिमिलरिटी में, कि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट्स, और ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहां से आती है, ये अभी मैंने बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग गिव द सैचुरेशन प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्सेस.
हमने अभी ये बताया था कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इन ए लिक्विड ड्रॉप आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। द मोलिक्यूल्स इन ए लिक्विड ड्रॉप, यदि लिक्विड ड्रॉप की हम बात करें उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स है, दोज मोलिक्यूल्स इंटरेक्ट ओनली विद देयर इमीडिएट नेबर्स, उनके एकदम नजदीक है, उनके उनके साथ उनका इंटरेक्शन आपस में होता है। तो सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्सेज आर short range forces and nucleons in the nucleus also interact only with their immediate neighbors। ये जो चीज है ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी को जन्म देती है, लीड्स टू द सैचुरेशन इन द न्यूक्लियर फोर्सेज और कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन। नेक्स्ट assumption, in an equilibrium state the nuclei of atom remain spherical symmetric under the action of strong attractive forces। These were some assumptions of nuclear assumptions of this liquid drop. Now, liquid drop model can be used to establish semi-empirical mass formula, and this formula is very important for calculating binding energy or binding energy for a nucleon. Liquid drop model can be used to obtain an expression for the binding energy of the nucleus. Weizsäcker proposed the semi-empirical nuclear binding energy formula for a nucleus of mass number capital A containing Z protons and capital N neutrons. This formula is also known as Weizsäcker semi-empirical mass formula. Now let us discuss this formula. कुछ बुक्स में आप इस फॉर्मूले को इस तरह के शेप में भी दे सकते हैं और कुछ जगह इस फॉर्मूले को हम अलग इस टाइप से दे सकते हैं कि दिस इज अ semi-empirical mass formula. Here capital A is the mass number of the nucleus. Z is the atomic number or number of protons and we can calculate the number of neutrons in the nucleus, and number of neutrons in the nucleus will be A minus Z. Obviously, there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 terms in this expression. Now let us discuss one by one. Here, this first term is the volume energy. This AV is the constant. Similarly, AS, as for surface, AS is constant. T for Coulombic, AC is constant. S by M, this is for symmetry. Symmetry is constant, and this delta AP, P for pairing, this delta AP is constant. So AV, AS, AC, asymmetry, and delta AP, these are constants. Now let us discuss these terms one by one. This is the binding energy. This first term, AV into A. What is AV into A? AV into A first term is known as the volume energy. This gives the volume energy of the nucleus. That is, volume energy is equal to AV into A. This is the volume energy. And the unit of this energy will be MeV, because binding energy is measured in MeV. So therefore, each and every term will have unit MeV. जितने भी टर्म है इसकी यूनिट भी MeV होगी, इसकी पूरे टर्म की भी MeV होगी और इस पूरे टर्म की यूनिट भी MeV, हिसाब MeV की होगी, बिकॉज V is measured in MeV. वन मोर थिंग, एक ध्यान देने की बात ये, सपोज ये टर्म है A is constant, this is dimensionless quantity, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसका मीनिंग ये बात, जो AV है कांस्टेंट, इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी MeV. सिमिलरली इन सेकंड टर्म A power 2/3, दिस इज कांस्टेंट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो जो यूनिट होगी AS की होगी, AS की यूनिट क्या होगी MeV अगेन. सिमिलरली हियर Z is constant, Z minus 1 is constant, A power minus 1/3, this is constant, so this Z minus 1, A to the power 1 minus 10, this is constant. So this is dimensionless quantity. AC will be having dimensions और AC की जो यूनिट होगी that will be MeV, इसकी MeV यूनिट होगी. सिमिलरली इस टर्म में आइए तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, यहाँ पर जो यूनिट होगी एसिमेट्री होगी और इसकी यूनिट MeV होगी और ये सब MeV होगी, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट.
तो इनमें हर टर्म की जो कांस्टेंट है इनमें यहाँ कांस्टेंट की जो यूनिट होगी दैट विल बी एमयू। तो हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। इस फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम एनर्जी, इज द वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग और वॉल्यूम एनर्जी इज इक्वल टू एबी इनटू ए। इट इज ऑब्वियस दैट दिस इज विद प्लस साइन। इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम एनर्जी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा वॉल्यूम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसमें इंक्रीमेंट होगा। दिस वॉल्यूम एनर्जी इंक्रीजेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ये बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। एक चीज और, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बिकॉज ए बी इज कॉन्स्टेंट, जो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट यहां पर चला जाएगी कैपिटल ए के। कैपिटल ए जितना ज्यादा होगा मीन्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। मीन्स द लार्ज total number of nucleons A, it will be more difficult to remove individual protons and neutrons from the nucleus. क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ये जितने ज्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो उतना डिफिकल्ट होगा उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, या उसके जो अंदर न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनको अलग अलग करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए होगा। तो दिस बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नाउ दिस सेकंड टर्म इज विद माइनस साइन। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो टर्म है सेकंड टर्म, दिस इज नोन एज द सरफेस एनर्जी, और ये नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव साइन का मतलब कि दिस टर्म डिक्रीजेज बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी टोटल उसमें ये डिक्रीमेंट पैदा करेगा, उसमें ये कमी लाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, तो द न्यूक्लियॉन्स, और एक चीज और, जो हमारे न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियॉन्स है तो उसमें कुछ न्यूक्लियस अंदर है, और जो अंदर है न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियस आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय अदर न्यूक्लियस। लेकिन जो सरफेस पर जो न्यूक्लियस है उनका क्या होगा? जो सरफेस पर है न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो सरफेस वाले क्या है वो चारों तरफ से सभी डायरेक्शन से कंप्लीटली सराउंड नहीं होंगे, क्योंकि जो उनका जो पोर्शन न्यूक्लियस का सरफेस की तरफ होगा वो तो बिना इंटरेक्शन के बिना सराउंडिंग के रह जाएगा। तो द न्यूक्लियॉन्स एट द सरफेस of the nucleus are not completely surrounded by other nucleons. Hence, the energy of the nucleons on the surface is less than that in interior. तो इंटीरियर में जो न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो सरफेस पर है न्यूक्लियस उनकी एनर्जी कम होगी, इसलिए ये माइनस है। A nucleus of radius r has an area of 4 pi r square because the nucleus is spherical in shape, और जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है 4 pi r square if r is the radius of the nucleus। यदि हम यहाँ पर r का जगह पुट कर दें r इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3, जो हमने कल नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द न्यूक्लियर रेडियस, तो हम वहां से r की वैल्यू यहाँ पे देते हैं, तो जो सरफेस एनर्जी वहां से हम ये आ जाएगी, वहां पर कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज और, therefore the surface effect reduces इस बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग। द नेगेटिव एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर। इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई since a greater fraction of their nucleons are on the surface. So this is about surface energy. Now third term, this is known as Coulombic energy. This term represents Coulomb energy of the nucleus. AC is constant, Z is number of protons, A is number of protons plus number of neutrons. तो एक चीज देखने को ये मिल रही है कि the electrostatic repulsion between each pair of protons, because in the nucleus there are protons, there are neutrons. Neutrons are electrically neutral, protons are having positive E charge plus E charge, proton पर सेम चार्ज है प्लस है, तो there will be repulsion between the protons
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और जब ये रिपल्सन होगा तो उससे क्या होगा, इससे ये एक बाइंडिंग एनर्जी में इंक्रीमेंट पैदा करेगा। रिपल्सन है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा उनमें, तो उससे क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी में डिग्रेस आएगी, बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। तो दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन between each pair of protons in a nucleus also contributes towards decreasing its binding energy. The Coulomb energy of a nucleus is the amount of work done that must be done to bring together Z protons from infinity into a volume equal to that of the nucleus. हम न्यूक्लियस के अंदर इन्फिनिटी से प्रोटॉन्स ला रहे हैं, जेट प्रोटॉन्स, और इन्फिनिटी से जेट प्रोटॉन्स को लाकर हमने न्यूक्लियस के अंदर लाकर रख दिया। उसमें उस प्रोसेस में जो भी वर्क हुआ दैट इज कूलम्ब एनर्जी, और ये भी नेगेटिव साइन के साथ है जो अभी हमने बताया, ये भी उसको बाइंडिंग एनर्जी को कम करने में कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, यहां से आप ध्यान से देखते हैं कि बाइंडिंग ये जो कूलम्ब एनर्जी है दिस इज प्रोपोर्शनल टू जेड इनटू जेड माइनस वन। और यदि हम यहाँ पे जो एरिया को यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें उसकी रेडियस पे आती है, तो रेडियस के रेसिप्रोकल होता है। मीनिंग ये है कि जो द नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर्स इन ए न्यूक्लियस कंटेनिंग जेट प्रोटॉन्स एंड दिस कूलम्बिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर रेडियस, ऐसा आ जाएगा एक्सप्रेशन में यदि हम आर की वैल्यू यहाँ लेते हैं तो। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हमने अभी बताया कि दिस कूलम्बिक एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज इट अराइजेज फ्रॉम ए फोर्स दैट अपोजेज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी को ये चैलेंज कर रहा है, तो जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है उसका अपोज कर रहा है, इसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी को कुछ कम कर दे रहा है। नाउ फोर्थ टर्म, इस फोर्थ टर्म इज अगेन नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये वाला टर्म भी जो है, जो यहाँ जिसको हम कहते हैं सिमेट्री एनर्जी, ये भी बाइंडिंग एनर्जी को कम करने में कंट्रीब्यूट करेगी, इसकी वजह से भी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो दिस फोर्थ टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैग बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z and the number of neutrons N in the nucleus. The maximum stability of a nucleus occurs when number of neutrons N equal to number of protons Z. ये हमने देखा भी है कि जो जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होगी तब उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये जो कहलाता है, ये सिमेट्री कहलाती है, N equal to Z। और जब सिमेट्री से कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, जब n इक्वल टू Z नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगी, तब वो कंडीशन असिमेट्री को पैदा करेगी, और उस एसिमेट्री की वजह से क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें कमी आएगी। स्टेबिलिटी में कमी आने का मतलब है उसकी बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस होगी, माइनस होगी, इसलिए यहां पर माइनस साइन है। एनी डिपार्चर फ्रॉम दिस n इक्वल टू Z इंट्रोड्यूसेस एन असिमेट्री, और वो एसिमेट्री कितनी होगी, n माइनस Z, which results in a decrease in the stability. The decrease in binding energy arising from this is known as asymmetric energy. This is asymmetric energy. This is also negative. और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो asymmetric energy है कितनी है, some constant a minus 2Z square upon a. This is the asymmetric energy. Now the fifth and last term, see with plus sign. So this term, this is known as correction term. The final correction term is delta allowed for the fact that even nuclei are more stable than odd nuclei. Even nuclei जो है वो more stable होगा, binding energy ज्यादा होगी in comparison of odd nuclei, क्योंकि odd nuclei में क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी टेंडेंसी होगी टुवर्ड्स इनस्टेबिलिटी, तो वो बाइंडिंग एनर्जी को कम करेगी। और इसमें एक चीज और है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा विल बी पॉजिटिव और इवन न्यूक्लियाई। यदि इवन न्यूक्लियाई है यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो डेल्टा पॉजिटिव है और इवन न्यूक्लियाई, तो ये टर्म इवन न्यूक्लियाई के लिए कितना होगा, ये पॉजिटिव होगा प्लस।
तो ये बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो प्लस होगा। और ओड ओड न्यूक्लियाई, ये टर्म नेगेटिव होगा। ओड ओड न्यूक्लियाई के लिए जैसे हमने बताया, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टुवर्ड्स इनस्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को कम करेगा। ओड ओड न्यूक्लियाई में स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये डेल्टा विल बी नेगेटिव फॉर ओड ओड न्यूक्लियाई। तो नेगेटिव होगा तो ये बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में कुछ चीज माइनस होगी, तो ओड ओड के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। और यदि ये जो ए की वैल्यू है, ओड है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये ओड है, तब ये वैल्यू होती है जीरो। ए की वैल्यू, ये जो डेल्टा की वैल्यू है, होगी जीरो, तो ये जीरो होगी और एन ओड ए, तो ये टर्म वेनिश कर जाएगी। तो दिस वाज अबाउट सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। और यहां से हम बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ए बी, ए एस, ए सी, एसिमेट्री और डेल्टा पी, ये जो टर्म्स है, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी जो द बेस्ट वैल्यू ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स एक्सप्रेस्ड इन एमईबी, वो है दिस ए बी इक्वल टू 15.760 एमईबी, AS equal to 17.810 MeV, AC equal to 0.711 MeV, and asymmetry equal to 23.702 MeV, और ये जो डेल्टा है इसकी 34 वैल्यू। Thus, semi-empirical mass formula is also known as Vedical empirical mass formula. Now, the contribution at the various effects in this semi-empirical mass formula can be represented systematically in a graph. Now let us discuss that graph. This is the systematical representation of binding energy and each and every term of the binding energy formula, semi-empirical mass formula. तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन था, हम इसको यदि पूरे एक्सप्रेशन को कैपिटल ए से डिवाइड कर देता हूं, ये है बाइंडिंग एनर्जी, इफ वी डिवाइड द एंटायर एक्सप्रेशन बाय कैपिटल ए, इट विल बी बी अपॉन ए, मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो दिस विल रिप्रेजेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ए से डिवाइड करूंगा तो यहां से ए कट जाएगा, इट विल बी सिंपली ए वी, मतलब सिंपल कांस्टेंट ए वी कांस्टेंट। ऐसे ही हम सभी टर्म्स में ए से डिवाइड कर देंगे हम, तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड किया, और तब ये ग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पर। ऑन वाई एक्सिस देयर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। ऑन एक्स एक्सिस हमने ए लिया मास नंबर। हम यहाँ फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम एनर्जी। और वॉल्यूम एनर्जी की का जो टर्म था, उसमें जब हम ए से डिवाइड कर देते थे, तो उसमें सीधे बैठ जा रहा है, जो रह जा रहा है ए, सिंपल, यानी कांस्टेंट आ रहा है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद ए की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो बाइंडिंग एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल बी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू ए बी। तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, ये ईवी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, और ए से हमने डिवाइड कर रखा उसको। सेकंड टर्म बाद सरफेस एनर्जी, तो दिस इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज नेगेटिव इन द एक्सप्रेशन, तो हम नेगेटिव उससे शुरू किया हमने डायरेक्शन से, दिस इज सरफेस एनर्जी। थर्ड टर्म था कोलम्बिक एनर्जी, तो ये कोलम्बिक एनर्जी, वो टर्म भी नेगेटिव था, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है, ये कोलम्बिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ टर्म था हमारा सिमेट्रिक एनर्जी, और सिमेट्री जो असिमेट्री एनर्जी, असिमेट्री भी नेगेटिव साइन के साथ ही, तो वो हमने यहाँ नीचे की तरफ दिखाया है विद नेगेटिव साइन। दिस रिप्रेजेंट्स सरफेस और सिमेट्री एनर्जी, दिस इज द सरफेस एनर्जी। asymmetry energy EA upon A, this is the asymmetry। and last term was final correction term, और वो फाइनल करेक्शन टर्म हमने यहाँ पे, आप एक मिनट ये देखिए, ये ग्राफ को, ये फर्स्ट टर्म आ गया है, सरफेस एनर्जी आएगी, कोलम्बिक और ये एसिमेट्रिक। इनका जो टोटल है ओवरऑल, दैट इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, उसका नेचर कुछ टाइप का है। इज द नेचर और बिहेवियर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रेस्पेक्ट टू मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी शुरू में बढ़ रही है,
with mass number, उसके बाद start to decrease। तो ये हमने इनको सभी ये जो इफेक्ट है, वॉल्यूम इफेक्ट है, सरफेस इफेक्ट है, सिमेट्रिक इफेक्ट है, प्लम्बिंग, उन सबको हमने सिस्टमेटिकली ग्राफ पर प्लॉट कर लिया और हमने यहाँ पर देखा। Now let us discuss merits. There are some merits of this liquid rho model. First merit, the liquid rho model accounts for many of the silent features of nuclear metal, such as the observed binding energies of nuclei and their stability against alpha and beta disintegration, as well as nuclear fission. Next similarity is the calculation of atomic masses and binding energies can be done with good accuracy with the help of liquid rho model। यदि liquid rho model की हेल्प से हम एटॉमिक मास और बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो काफी अच्छी आपकी काफी एक्यूरेसी के साथ हमें मिलती है। However, there are some demerits। लिक्विड rho model की जो मेरिट्स हैं इसके साथ साथ इसकी कुछ demerits हैं। Now let us discuss these demerits। First demerit है this liquid rho model could not explain other properties, in particular the magic numbers। What is magic numbers? This model was failed to explain this magic numbers। This liquid rho model also could not explain the measured spins and magnetic moments of the nuclei। It could not explain the excited states in most of the nuclei। So these are some demerits of this liquid rho model। Now, today we have discussed about what is this liquid rho model and what are the merits and demerits of liquid rho model, and how this liquid rho model can be used to establish binding energy expression of semi-empirical mass formula, and what are the assumptions or similarities between nucleus and the liquid rho। This was about liquid rho model। Now next time we will see some more